महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। पापा, पापा, why do we say हर हर महादेव, हर हर महादेव? हर हर महादेव. Listen, let me pray. I'll tell you later, okay? हर हर महादेव. पापा प्लीज बोलो ना, बोलो ना पापा, प्लीज बोलो ना, क्यों बोलते हैं हर हर महादेव? अरे अरे, I said I'll tell you. Okay. I'll tell you now. इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ. तो हर हर महादेव क्यों? देखो, दुनिया में अच्छाई और बुराई दोनों ही है ना, और जब बुराई अच्छाई पर हावी होने लगती है ना, तब महादेव आते हैं बुराई को नष्ट करने. तो ये कहानी कुछ ऐसे है. Once upon a time, there were two big empires. Suryavanshi Empire, the followers of Ram Raj. Chandravanshi empires, the destroyers of Ram Raj. They killed millions and millions of innocent Suryavanshis for the greed of Somras. Somras, a god's drink. That's when Nilkant took it upon himself to destroy the evil Chandravanshis. So a war was declared. But there was a terror of being outnumbered 10-1 against the evil Chandravanshis. That's when Nilkant, riding on a horse, घोड़े को दौड़ाते हवा को चीरते आ रहे हैं महादेव. घोड़े को दौड़ाते हवा को चीरते आ रहे हैं महादेव. महादेव की जय, 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 महादेव की जय. कौन है महादेव? क्या वो एक उदास भरी ऊंचाई पर बैठकर व्यर्थ ही देखता रहता है, जबकि साधारण लोग वो काम करते हैं जो उसका कार्य है? नहीं. क्या वो सुस्ती से आशीर्वाद प्रदान करता है, जबकि अन्य लोग सच्चाई के लिए युद्ध करते हैं? क्या वो उदासीनता में खड़ा मृतकों को गिनता रहता है, जबकि जीवित व्यक्ति बलिदान देते हैं बुराइयों को नष्ट करने के लिए? नहीं. कोई व्यक्ति महादेव तभी बनता है
जब वो अच्छाई के लिए युद्ध करता है। एक महादेव अपनी माता के गर्भ से उत्पन्न नहीं होता, वो युद्ध के ताप में तप कर निकलता है जब बुराइयों को नष्ट करने के लिए वो युद्ध का प्रारंभ करता है। मैं एक महादेव हूँ। लेकिन मैं एकमात्र नहीं हूं। मैं एकमात्र नहीं हूं क्योंकि मैं अपने समक्ष 1,00,000 महादेवों को देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि 1,00,000 महादेव अच्छाई के पक्ष में लड़ने को तैयार है। मैं देख रहा हूं कि 1,00,000 महादेव बुराई से लड़ने को तैयार है। मैं देख रहा हूं कि 1,00,000 महादेव क्षमता रखते हैं बुराई को नष्ट करने के। हरे है महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप समझे हम क्यों बोलते हैं हर महादेव? आप महादेव, मैं महादेव, हर एक है महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, There lived a certain man in Russia long ago. He was big and strong, and his eyes a flaming glow. Most people looked at him with terror and with fear. But to Moscow chicks, he was such a lovely dear. He could preach the Bible like a preacher, full of ecstasy and fire. But he also was the kind of teacher women would desire. Rasputin, lover of the Russian queen. There was a cat that really was gone. Rasputin, Russia's greatest love machine. It was a shame how he carried on. He ruled the Russian land, and never mind the Tsar. But the Kazachok he danced, really wunderbar. In all affairs of state, he was the man to please. But he was real great when he had a girl to squeeze. For the queen, he was no wheeler dealer, though she'd heard the things he'd done. He believed he was a holy healer who would heal her son. Rasputin, lover of the Russian queen. There was a cat that really was gone. Rasputin, Russia's greatest love machine. It was a shame how he carried on. But when his drinking and lusting and hunger for power became known to more and more people, the demands to do something about this outrageous man became louder and louder.
This man's just got to go, declared his enemies. But the ladies begged. Don't you try to do it, please. No doubt this Rasputin had lots of hidden charms. Though he was a brute, they just fell into his arms. Then one night, some men of higher standing set up a trap. They're not to blame. Come to visit us, as they kept demanding. And they really came. Rasputin, lover of the Russian queen. They put some poison into his wine. Rasputin, Russia's greatest love machine. He drank it all and said, I feel fine. Rah, rah, Rasputin, lover of the Russian queen. They didn't quit, they wanted his head. Rah, rah, Rasputin, Russia's greatest love machine. And so they shot him till he was dead. Here's to us, Russians. Na zdrowie. That means cheers. Okay, over to the last sum. Got the 26, 58. Okay, what does that give you, Amok? Amok, that's not even close to the actual answer. You've been doing that for the past hour, Amok. You need to buckle up. You need to buckle up. Anyway, that's it. That's it for today, students. I will send the homework on the WhatsApp group. Make sure to finish that. And I know the coronavirus situation in China and Italy, it's not coming anywhere near us. You don't need to tell me about that. Also, make sure you take the vadas that I've kept for you outside while going. Okay? Yes. Yeah, that's it. That's it. Back up. Bye-bye. Bye. Online classes to start in pandemic. Sweetie, online classes laptop depth what about my bachas? What about my bachas? No, it's nothing, sweetie. It's nothing. I miss my bachas. I haven't seen them for 20 days. It feels like a whole year, and they're not replying to the WhatsApp group, nothing. It's not, okay, listen to me. I have been teaching for the past 35 years. You don't need to teach me how to teach now. Okay, I know it's not going to be done over a stupid laptop. I need them here. Okay, only way I can teach them is they're here. You go back, do whatever you're doing, please. Please don't trouble me outside. Go study whatever you were doing. Go inside. I have to order that stupid online vegetable now. Speaker. Yeah. Hi, yeah, beta Amok.
just help me order this online vegetable, no? Hey, this don't make you smart. Maths make you smart. Yes. Now please just help me, no, beta. Okay. Orange button done. Quantity. Quantity. Okay, quantity add. Okay, green button, no? Okay. Yes, beta, done, Amok. Okay, listen to me. Find a degree in online vegetable ordering. I will declare you smart. Full word. Okay, bye, Amok. Yes. 5,000. Are you, sweetie? Sweetie? Neelam. Hi, Neelam. Hi. Yes, how have you been? How's the pregnancy? Yes, I know, 7 months. I know. Going where? Neelama, you can't travel. Are you not seeing the news, Neelama? Neelama, you can't go anywhere. People are sleeping on train tracks, Neelam. Neelam, think about the baby. Don't go. Did Ajay even agree to this? Is Ajay there? You're going, I say, tell me honestly. Neelam, please. Neelam, manage something. Think about the baby, no? No, ask Neelam. No. Don't be shy, ask. Neelam, I don't have any money to give you. Neelam, I don't have any money to give. I'm managing everything on loan, Neelam. Please don't ask for money, Neelam. Sweetie's college fee is unpaid. Mahesh is stuck in Bangalore. Please manage something. Work something out. It'll happen. Trust me. Neelam? God. Sweetie? Yeah, beta, come here. Nothing. You can't go to the college that you want to. Neelam auntie needs the money, sweetie. Sweetie, listen. Sweetie, listen. It's very important. She's pregnant, so beta, you have to understand. Light bill are done. Gas bill are done. What? Meghanti saw the tuition. How? Stupid laptop, sweetie. Anyway. Please don't get started about the whole online teaching, sweetie, please. You know what? Okay. No, come here. Come here. Teach me. Teach me how to operate this Zoom. No, come. Sit. Zoom. Okay. Who's the meeting? Okay, that's not. Time zone. Okay, what to do next? That's it. Good. So tomorrow I have to just send this. I can't even smell it. Oh, it's a link. Yeah, I have to send this link to the WhatsApp group and the students will come, no? Okay. Okay. We'll see how this goes. Yeah. Go. Okay. Zoom. Stop my camera. Start meeting. Start camera.
Hi, students. Hi. Yes. First things first. We are accompanied by 4 international students today. Yes, we have Maria from California, Shiny from Seattle, Simran from Toronto, Radha from Durban. Okay, before we start, can I just tell how difficult it has been without all of you? Mind, okay. So the Zoom turned out to be pretty well. I can see you, I can talk to you. That's all I want, honestly. Okay. Now, get your maths textbook, page number 1. And let's start with math. Yo, what up? Yeah, man, it's that time of year. I hate it. I'm like cleaning, me and cleaning, you know. Yeah, it's Christmas, so it's been 2 years since I've cleaned anything. So yeah, I found this box. It's my mom's box. Yeah, I don't know if you know what origami is. She used to make these little toys for me. I thought I'd just share it with you because I'm feeling nostalgic. Yeah. This paper toy, imagine. She used to pacify me at the breakfast table whenever I cried. As a kid, as a 10-year-old kid, I used to get happy with the paper toy. Jack, why cry? Come here. Sit. Come. Zisha. Lahu. Yeah, I used to get happy with paper toys. Do you remember Mark, that coward? Yeah, he was with me in college as well. We used to have play dates. Like he used to bring his Star Wars toy, and I had Lahu. Imagine. I remember this one day so clearly. The play date went so wrong. Hey, Mark, how are you? Let's play. Hey, Jack, what do you have? See what I have. I have the Obi-Wan Kenobi action toy. I have Lahu. My mom made it for me. What can Lahu do that my toy can't? Look. How dare you? You broke my toy. That is your Chinese garbage. I'm sure it was more expensive than what your dad paid for your mom. Yeah, he told me pretty crazy shit. I remember he was so irritating. He used to isolate me. Even in school, he hated me after that. And that's when I started actually hating my Chinese side. That was the first time I actually got called chick. Yeah, it was pretty crazy. From school going home, I actually started hating my mom for that. I don't look like her. I don't want to look like her. Dad, do I have a ching face? Xiao ching? English! Speak in English! What happened, Jack? I think we should eat American food, not Chinese. Yeah, I actually told her that. Can you believe it? And
she used to actually really try. She really tried to make amends. But now I realize that it was so mean of me. Jack, come here. Let it be, Mom. Okay, no hugging. I made pasta. I made pizza for you. Don't even try, Mom. You'll never be like the other moms. Yeah, that was like probably the last time I had Chinese food. I'm just thinking of the last time I met her was in hospital. She was battling a disease, which I never knew about. And I was in college and we just didn't have the best of conversations, and I just feel like I'm regretting it now. Jack. Thank you. I know you want to go back to school. I just want to tell you, if I don't make it, just take that box out on Qingming every year and know I'll be with you always. I don't know anything about Chinese calendar, Mom. Just rest now. Haitsu Mama Aini. That was the last thing she told me in Chinese. And that was the last time I heard Chinese. So yeah, this is the box that's hers. There's notes in here. Wow. I never knew my mom could write. Jack, me loves mother you, Mom, and her lousy English. Jack, you loves me, you. Jack, your mother loves you. Finally got it. Oh my God. She finally got English. No, I'm okay, mate. I'll be fine. What about that 11th person? Hello. Yes, Pratyush. Yes, I know the deadline's here. What are you trying to do, huh? Are you trying to babysit me? How many best-selling novels have I given you? That's right. 5. So please let me do my work and leave me alone. Idiot. I need to retrace my steps. तो गुरचरण सिंह जी ने खाली एक दूध का क्रेट देखा और बस इसी बेसिस पर वो अंदर गए. And that's when all hell broke loose. बड़ी अजीब गल है. 7 बज गए, ये दूध का क्रेट इधर ही पड़ा है. ओ सोनू, बेटा इधर आ. अंदर से कोई क्रेट उठाने नहीं आया? नहीं. कमाल है. अंदर जाके देखूं क्या? ओ भाभी जी,
ओ भाई साहब आए नहीं वॉक पे आज? ओ, ये भी खुला है। ओ भाई गुरु, ओ भाई गुरु, ओ भाई गुरु। लेकिन बस इसी बेसिस पे कैसे? What if he... नहीं, that doesn't work at all. No. I need to think about Lalit. उस रात वो अपनी माँ के पास गया था। हाँ, माँ, अरे घबरा क्यों रही हो माँ? आज तो हमारे लिए खुशी का दिन है। वो देखो, पिताजी खड़े हैं। आज तो हम उनसे मिलने वाले हैं माँ। आप उनसे मिलने वाली हैं। फिर उसने अपनी माँ का ही गला घोंटकर और उन्हें जमीन पर छोड़ दिया। फिर वो अपनी बाकी की फैमिली के पास जाता है जो कि लटकने के लिए ऑलरेडी तैयार खड़े हैं। उनके पास जाकर कहता है, भैया, भाभी, अरे रोते क्यों हो बच्चों? आज तो हमारे लिए खुशी का दिन है। बस ये एक क्रिया करनी बाकी है। फिर हमारी आत्मा उन 11 पाइप से निकलकर सीधा मोक्ष की ओर जाएंगी। सीधा मोक्ष की ओर। और फिर ललित अपनी आंख पर पट्टी बांधकर, मुंह पर टेप लगाकर और बाकी सारे सदस्यों के साथ आत्महत्या कर लेता है। What about the police? What did they conclude? हाँ भाई श्रीवास्तव, कुछ नया मिला? डायरी मिली है? कहाँ रखी है? Hmm. 11 मार्च 2018। आज पिताजी फिर सपने में आए। उन्होंने कहा कि अगर हम ये क्रिया रात के 12 बजे से लेके 1 बजे के बीच में करेंगे तो हमें मुक्ति मिलेगी। इसका मतलब ये सब इन्होंने जानबूझ के किया। And that's when the police ruled out murder, robbery, even a property dispute. ये 11 सदस्यों ने जानबूझकर आत्महत्या की। But what about that 11th person? उसके हाथ किसने बांधे? मिल गई एंडिंग। एंडिंग कुछ है ही नहीं। अरे सॉरी पता है आई एम लेट, आई नो मैन। या अरे यार 25 मिनट लेट इज नॉट लेट अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और मैं आ तो गया, और देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। A rose for a rose। अरे यार क्या बताऊं, I just got stuck in this meeting. There is this big project casting going on, you know, and वहां पे I got stuck in this meeting with the producer and the casting director. फिर मैं वहां से एकदम भाग के आया तेरे साथ मिलने। हाँ देख पसीना हो गया मैं गर्मी में एकदम। मैडम आप एकदम मस्त लग रही है। हाँ एकदम चकाचक मिस अमेरिका। हाँ क्या बात है, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ दिस हॉटनेस की दुकान? हाँ अमेरिका का हवा और इज इट अमेरिका की पानी? हाँ एकदम मां लग रही हो। अरे क्या हुआ? I was just complimenting you बाबा, come on। पसंद नहीं आया? हाँ अच्छा वेट, let me try again। कृपया ध्यान दीजिए,
कोलकाता के सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पे आपका स्वागत है। बाहर और अंदर दोनों जगह का तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा है क्योंकि द ग्रेट हॉट एंड हैपनिंग मिस शाइनी, द सुपरस्टार, सुपरवुमन, सुपर अमेजिंग, supremely talented, intelligent, beautiful superstar has arrived in the city of joy, and the city of joy is more joyful than ever. क्या सही था? ये लगा कॉम्प्लीमेंट। चलो ये सब बातें चलती रहेगी। की चाहिए तो कॉफी क्या वो लाटे कैपुचिनो? आप जो बोलेंगे मैडम वही लाता हूँ मैं। चल आज सीधा भाई साहब तो लाटे दीजिए। By the way, you want cheesecake? So the brownies are really good. Cookies? Sure. এই যে ম্যাডাম আপনার জন্য গরম গরম কফি এনি। আর বলুন কি চলছে? What's going on in America? What's Mr. Trump না কে জানো? Biden हाँ। What's Mr. Biden saying? वैसे मैंने कॉल लगा दिया उन्हें, मैंने बता दिया कि you know take special care of Shiny. She's special friend. I've told them you take no tension, no worries. एकदम बता दिया मैंने। हमारा क्या, हम भिखारी लोग हैं, आपके जैसे डॉलर्स में तो नहीं कमाते, ऐसे ही प्रोड्यूसर्स के आगे पीछे घूमना पड़ता है रोजी रोटी के लिए। हाँ वैसे आप बनेंगी प्रोड्यूसर? हाँ थोड़े अपने डॉलर्स इन्वेस्ट कर लो, स्कोप है काफी यहाँ पे। तुम प्रोड्यूसर बनोगी तो मेरा तो ऐश ही ऐश। अरे यहाँ पे लाइटिंग सही है, मैं एक दो सेल्फीज ले लेता हूँ। हाँ अरे यू नो आजकल ना इंस्टा पे नया कंटेंट नहीं डालने से एंगेजमेंट ड्रॉप्स। इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। ऑफ कोर्स लेंगे यार, साथ में पिक्चर्स ऑफ कोर्स लेंगे। एक्चुअली ना मैं तो तुम्हारे बारे में कुछ खास सोचा है। यू नो आई वाज थिंकिंग वी कैन गो टू हावड़ा ब्रिज या प्रिंसेप घाट एंड वी कैन एक्चुअली गो ऑन अ बोट राइड। एक्चुअली इट विल बी वेरी रोमांटिक। यू नो थॉट आया, मैं लिख लेता हूँ। हाँ यू नो इट्स beautiful people like you that give beautiful inspiration to artists like us. क्या लिख रहा हूं? तो जस्ट सोचो, प्रिंसेप घाट, हावड़ा ब्रिज के अंदर, बोट राइड अंडर मूनलाइट, sexy NRI US return, 7 days of whirlwind romance, nothing planned, no plans about the future, just living in the moment. I could actually pitch it to a producer and get it made into a movie. Audience is going to love it. It will be such a fresh new idea. सोचो, वैसे पिक्चर बनेगी तो हीरोइन बनोगी? वैसे किसी हीरोइन से कम नहीं लगती तुम। By the way, on that note, मुझे याद आया, there is this other production का casting going on. If you want, I can refer you. Very nice project, very good opportunity. They're launching also a new heroine. तुम चाहो तो मैं बोल सकता, बात कर सकता हूँ। The only problem is like compro work है, but then opportunity सही है। ये compro नहीं पता? सही में compromise। अमेरिका अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। कोई बात नहीं, मैं सब सिखा दूंगा। वैसे तुम वो मी टू शी टू ब्रिगेड का पार्ट तो नहीं हो ना? ओके। अच्छा, by the way, there's this new restaurant that has opened. It's really good. It's called Lord of the Spice. Amazing ambience, great food. You would love it. ऐसे भी तुम्हारा लास्ट ईयर का ट्रीट पेंडिंग है। हाँ चलोगी? Fine, or else we can go for this. We can go for a long drive. I have actually Podcoin in my car, so we can, listen to some music, go for a drive, and then have some wine, and then maybe find a spot and maybe make out in the backseat of my car, huh? And then maybe I can teach you a thing or two
compromise. Huh? And man, you have an amazing body, an amazing face, of course. You should flaunt it, flaunt your assets, as they say. If you got them, flaunt them. Be confident about yourself, you know? So, क्या ख्याल है? चलोगी? हाँ? अच्छा, okay. Oh, okay. नहीं, कोई problem नहीं. Of course, you are here for a short time, I understand. हाँ. फिर कभी बनाएंगे plans. कब तक हो तुम यहाँ? Okay. No issues. Don't feel guilty, Baba. It's okay, fine. Yeah, we'll make another plan. अच्छा ठीक है. तो नहीं, मैं तुम्हें आज drop नहीं कर सकता. Actually, you know, I am getting another call from a producer. There's another project in the pipeline. So he's been calling me. मैं तो तुम्हारे साथ spontaneous plans बना रहा था, but then मुझे भी जाना है. So actually मुझे Park Street की तरफ जाना है, not Tollywood Studios. So कोई बात नहीं. चलो. Give me a hug. Yes, I missed you so much. It was great seeing you. चलो मैं तुम्हारे लिए कैब बुला देता हूँ. हाँ ठीक है. अरे यहाँ पे रुको ना. There will be a lot of cabs lined up. One sec. अरे टैक्सी. जादवपुर. चलो मिल गई. हाँ. Okay. All right. I'll see you again. हाँ. चलो. Bye. Bye. हेलो जानकी. क्या कर रहा है? कुछ नहीं यार, वो शाइनी है ना, वो यूएस वाली, उससे मिलने आया था. दिमाग खराब साली निकल गई. कुछ भी नहीं किया. यहाँ नहीं जाना, वो नहीं करना. बकवास. हाँ निश्चय काल देखो है ना. प्लान्स ऑन. यस दादा के बोले दिश. हाँ चले आज. ओके चल बस टाटा. Yeah, actually, I'm waiting on a friend. So give me a couple of minutes. I'll order after that. Huh. Hey, Sheila, क्या कर रही है? अरे I just got off early from this meeting. तो मुझे लगा कि क्या हम मिल सकते हैं अभी? हाँ 9 बजे का प्लान था, बट मैं अभी फ्री हुआ ना, इसीलिए. अरे यार 9 बजे का मुझे नहीं पता, मैं अभी फ्री हुआ इसीलिए तुझे अभी कॉल किया ना. Because I thought we could spend some good time. Oh, okay. नहीं तू कर ले, मतलब तू देख ले. ठीक है. Okay चल. No issues. Okay चल. Bye. Bitch. No, actually I need to leave actually. So no orders as of now. Chalo. Hey, hi Tina. Yeah, actually I'm in the area. You want to catch up? Hey, John. Hey. Not so good actually. Well, I've been trying to reach you for the past 2 hours since you sent out that last update. Well, I'm afraid I'm gonna have to tell you these changes are not gonna work for the sampling team. We've been preparing for months and months for the rocks in the Jezero crater, north of the equator. No, that's south. Jezero is south, John. Your update will take us north, which we cannot work with. A misunderstanding. From whose end, John? Well, these plans have been in place since before the launch in July, and as far as I'm concerned as a team leader, my sampling team has been very clear on the instructions provided to us, which was to maintain focus on the igneous rocks down to the crater. Well,
Don't you think it's a little too impulsive to be making changes like that 2 hours before the landing, John? Well, I mean, now only 7 minutes. It's 1:48 p.m. No, John, 1:48 p.m. local in Alberta. Probably, I don't know, 12:48 for you down there. Yeah, I am aware this would have been a whole lot easier had I been down in the lab in California, but you know, the pandemic has all of our hands tied. No, John, even the rover is not equipped to sample these new grounds before the crater. I've been in touch with the design team and yeah, they're of the same opinion. Uh-huh. Who? Sanjeev. Sanjeev Gupta, the one down in London. Huh. He's making all these calls? Come on, John, you gotta negotiate with the man. I mean, all right, well, what can we do? Let's see, what can we work with? Okay, we can just skip the radar lock. How about that? Yeah, I was actually on a conference call with the operations team and they said it's perfectly safe to do so. Yeah, and we can reach the landmark. John, you gotta understand, all of our work is gonna be null and void for at least another 6 months until the rover can make its way back to the crater, and that's when we'll start all the sampling from scratch. That's 6 months of samples we could have collected. Uh-huh. All right, yeah, yes, please have a word with the guy, with Sanjeev, and figure this out. We really don't have much time. Uh-huh. All right. Okay. Stay in touch. Mhm. Hello. Hello. Hi, John. Yeah, it's Sanjeev here again. Yeah, we had some connectivity issues in South London, but yeah, my screens are working fine. Yeah, I'm back in. Well, no, it didn't just enter the atmosphere. Technically, it was 11 minutes ago, no? See, you have to keep in mind, it takes only 11 minutes for the feedback to travel from Mars to Earth. So, you know, you can't be inaccurate about details like that at this point, no, John? Huh? Mm-hmm. No. John, what are you saying? No. I mean, are you looking at what I'm looking at? We can't just skip the radar lock at this point. It's no. It's too late. It's too late. Well, because once you put the landmark into the algorithm, it's final. It's preset. John, you know, making changes like that to that degree at this point can be very harmful for the rover. By that specifically, I mean, you will have to destroy the helicopter upon landing. Yeah, the one that detaches. Completely destroyed. Are you sure, John? Well, I'm asking because that's $500 million of the budget just discarded before we even land. Okay, well, at most, all I can suggest is if we adjust the deceleration speed, but only by 0.5, and I'll do that right now. But again, I have to be very clear and transparent from my end, John, that this will still not guarantee a successful landing. Yeah, on top of that, you have to wait for the feedback confirmation. So that is also there. Okay, yeah, well, tell Swati to stand by for the confirmation. Nothing as of yet, but I'll let you know. Yeah, keep in touch. Okay, yeah, bye. Mm-hmm.
The navigation has confirmed that the parachute has deployed, and we are seeing significant deceleration in the velocity. Perseverance has slowed to subsonic speed, and the heat shield has been separated. This allows both the radar and the camera to get a closer look at the surface. We have started our constant velocity accordion. Current speed is 30 meters per second, and altitude is 300 meters off of the surface of Mars, which means we are conducting the Sky Crane maneuver. Sky Crane maneuver has begun. 20 meters off of the surface. 10 meters off of the surface. 5 meters off of the surface. Touchdown confirmed. Perseverance has landed. Perseverance has landed safely on the surface of Mars, ready to begin seeking the sands of past life. At this point, the spaceship has flown away to Safe Space 6. Perseverance is continuing to transmit directly through the orbiter to us. नमस्कार, मैं आपका मेजबान शेखर आदित्य राज और डेयरिंग कॉप्स के इस एपिसोड में हमारी मुलाकात होगी मुंबई के एक जाबाज ऑफिसर से। इन्होंने कई बड़े और नामची क्रिमिनल्स को सलाखों के पीछे किया है, वो चाहे करीम लाला हो या हाजी मस्तान। इनका नाम सुनकर क्रिमिनल्स के गले सूख जाते हैं। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स वेलकम रिटायर्ड एसीपी ऑफ पुलिस मिस्टर मधुकर जेंडे। Thank you. Thanks for having me in the show. Abhi, talking about him, oh, he had a very twisted mind. वो हमारे बम्बईया में बोलता है येड़ा। जब बम्बई आया था, he came with 2 revolvers चुरा के। एक बेचा वो 5,000 रुपए में। हम बोला बड़ा अच्छा अमाउंट है, गुड। उसके बाद दूसरा एक बिजनेसमैन के पास गया, बोला हमको रिवॉल्वर बेचने का है। वो बोला है हमको मालूम नहीं है कैसा क्या चलता है। बोला हम क्या खरीदेगा। वो बोला तुम चौपाटी चलो, उधर एसके पाटिल गार्डन है, उधर तुमको दिखाएगा। अच्छा, अभी इसको भी नो आइडिया ऐसा रिवॉल्वर कैसा क्या चलता है। तो उधर गए। व्हेन ही वाज शोइंग द रिवॉल्वर, वो लोडेड था। वो जो थर्ड प्रोस्पेक्टिव बायर था, उस पर बुलेट फायर हो गया। एकदम घबरा गया दोनों। बोला अभी क्या करने का है। और वो ही फ्लड ऑफ। ये इसको याद आया कि हाँ, वो अपना जेंडे बड़ा अच्छा आदमी है, मदद किया था। वो दोपहर को भागे भागे मेरे पास आया और मैं उस वक्त गामती देवी स्टेशन में था। वो आके बोलता है साहब ये रिवॉल्वर। मैं बोला है अजय पागल है तुम। तो वो तब मुझे बताया, वो साहब ये ऐसा ऐसा हुआ, ये था। उसने अपना नाम चार्ल्स शोभराज बताया। वो अभी अटैक करने का प्लान कर रहे हैं नवंबर 14 को एयर इंडिया में। अभी फिर एक हफ्ते बाद वो ऐसा सूट बूट पहन के घूम रहा था मरीन ड्राइव पे। तो हम लोग टैक्सी में थे। अजय बोला साहब ये यही आदमी है। तो देयर वी गॉट हिम। यस सर। सो ये आपकी चार्ल्स से पहली मुलाकात थी। हाँ राइट। इसके बाद ऑलमोस्ट 15 years, 1986 में वी नैप्ड हिम अगेन। सर इस वारदात के बारे में आप थोड़ी और जानकारी दे सकते हैं? बॉयज, अभी एक खबर आया, ये अपन को कंफर्म नहीं है, पर गोवा के ओकोकेरा होटल में हमें शोभराज और उसके अलाई मिल सकते हैं। तो तबला तोड़ भी निकलने का है और उधर जाके देखेंगे। बोरकर
मुझे लॉबी के अंदर सारा टीम चाहिए, 2 लोग बाहर स्ट्रीट पे मेरे को मॉनिटरिंग चाहिए। बरोबर, हाँ। अभी ये हम दिन भर बाइक लेके पूरा गोवा घूमता रहता था और शाम को कोकेरा होटल में वेट करता था। अच्छा, ये सब सिविल ड्रेस में थे, अभी किसी को कुछ बता नहीं पाते कौन क्या कैसा है। वो आके पूछता रहता हमसे, सर एक्चुअली 2 आवर्स हो गए एंड हमारे होटल के रूल्स हैं, आप एक बार मैनेजर से बात कर लेंगे, यू हैवंट ऑर्डर्ड एनीथिंग प्लीज सर। तू एक काम कर, वो फिश फ्राई और परोठा लेके आ, हाँ, और हाँ घंटा भर बाद बिरयानी और एक भुर्जी ले आ। बरोबर, हाँ चलो। ऐसा 5 दिन निकाल दिया। 6 अप्रैल को हिंदुस्तान पाकिस्तान का हॉकी मैच था। उधर पे रात को 10 बजे हम सब लॉबी में बैठ के देख रहे हैं, वो अचानक एक मेन डोर से सफेद गाड़ी आया, वो 2 आदमी उतरे। मैं देखा, ये व्हाट नॉनसेंस, रात को ऐसा सनलाइट कौन पहनता है। बेटा, one stuffed crab, yeah, bourbon glazed salmon, perfect, and Caesar salad. David, some wine, red or white, perfect. I'll go with ganache. 66 should be fine, perfect. Good night. मेरा एकदम हाथ पैर कांप गया। मैं तुरंत वेटर को लाया, मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, अंदर जो बैठे हैं वो सब पुलिस वाले हैं, ये उन्हें जाकर देना है और बोलना है बाहर एक टैक्सी खड़ी है, उसके ड्राइवर को पकड़े। 2 लोग पास आए और बाकी गेट के पास है। यार Charles! Hey, who Charles? Hey, you're Charles Shobraj. What nonsense are you talking about? Hey, don't forget, I'm the same old Zende who caught you 15 years ago. अभी मेरा ये बोलते ही उसका पूरा हिम्मत टूट गया। अच्छा, हम कोई प्रिपरेशन के साथ नहीं आया था, कोई हथकड़ी पिथकड़ी कुछ नहीं था हमारे पास। वो तुरंत वेटर को बोला, जल्दी जाओ, जितना रस्सी है तुम्हारे पास फटाफट लेके जाओ, जाओ। Sir, Sunday. Sir, we have nabbed Charles Shobraj. Yes, sir. Sir, 100 nahi, sir. 1000% sure, man. Sir, definitely. Yes. Yes, sir. Sure. और देन उसको व्हेन वी गॉट टू मुंबई, उधर से दिल्ली पुलिस के डिप्टी कमिश्नर मिस्टर आमोद खंड, he took the charge from us. Wow. So that's really inspirational. And that's the reason you are a super cop in your own right. We salute you, sir, for this. And thank you. आप हमारे शो में आए, हम इसके बहुत आभारी हैं। And to you viewers, हमारी आपसे मुलाकात होगी डेयरिंग कॉप्स के अगले एपिसोड में कुछ और दिलचस्प और इंटरेस्टिंग कहानियों के साथ। Till then, this is your host, Shekhar Adityaraj, signing off. Raghubi, you're still with us. ये अब इसमें क्या डिस्कशन करें, ये तो इतना कुछ मेरे सामने नजर आ गया ऐसे माहौल में कि मैं तो बयान नहीं कर सकता भाई। क्या है कि
एक तो एक बात की बड़ी मुझे जो खुशी हुई कि थिएटर अपनी जगह अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। ये जो ऑनलाइन परफॉर्मेंस मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था। इससे मैं एक्चुअली पहली दफ़ा देख रहा हूँ ये। और क्या है कि इस तरह की परफॉर्मेंस में जिम्मेदारियां जो ज़्यादा बढ़ जाती हैं वो आप लोगों ने इतनी बाखूबी निभाई है, क्योंकि आपके पास कोई आबो हवा नहीं होती, कोई फजा नहीं होती, बस चार दीवारी के अंदर बैठे आप सारी चीज़ों को इमेजिन करके और आप उसको परफॉर्म कर रहे हैं। बड़ा मुश्किल काम है ये, और मुश्किल काम को आप लोगों ने जो जिस तरीके से आसान बनाया है वाकई काबिल तारीफ है। मैं तो बस गदगद हो गया। मैं जिस तरह एक्साइटेड था और बहुत मुझे ये भी लग रहा था कि करेंगे कैसे। मुझे ऐसा लग रहा है कि बस ऐसी बच्चों की तरह कुछ होगा और वो कोई चीज़ रखी होगी और कुछ है, लेकिन बाखूबी ऐसे महसूस ही नहीं हो रहा था। मुझे तो ऐसा लग रहा है किसी थिएटर हॉल में परफॉर्मेंस देख रहा हूँ मैं। तो ये बहुत बड़ा अच्छा लगा और बहुत बहुत बढ़िया ये कोशिश है, ये प्रयास है। और इससे मुझे इन परफॉर्मेंस, इन सब लोगों की परफॉर्मेंस देख के मुझे थिएटर पे तो गर्व महसूस होता है कि हम थिएटर के हम लोग दीवाने हैं। क्योंकि थिएटर जो जगह ढूंढ लेता है, अपने जीने का रास्ता ढूंढ लेता है, जीने का नज़रिया ढूंढ लेता है, चाहे कुछ भी, कितनी भी आफत हो। हम क्या कम आफतों में जी रहे हैं? हमें बाहर निकलना लाजिम नहीं, हम लोग बाहर नहीं निकल सकते, हम घर के अंदर भी नहीं रह सकते बाहर, और वैसे में हम परफॉर्मेंस भी कर रहे हैं। तो ये थिएटर की ही सोच है, थिएटर की कुव्वत है, थिएटर की जहनियत है जो हर जगह अपना रास्ता ढूंढ लेता है। तो ये बड़ा मुझे बहुत मज़ा आया। मैं सच कह रहा हूँ, बहुत गदगद हूँ मैं। और बस इसको आप बरकरार रखिए। और ये सब कोविड ये सब किसी काम के नहीं है। थिएटर वालों के आगे ये सब पनाह मांगते हैं, पानी मांगते हैं ये सब। तो बहुत बढ़िया प्रयास है। और थैंक यू वेरी, आपने जो मुझे शामिल किया है इसमें, ये देखने का मुझे मौका मिला। तो मैं तो काफ़ी दिनों से मेरा थिएटर, ख़ासतौर पे 2 साल से तो कुछ थिएटर से मेरा जुड़ाव ही नहीं था। और मुझे ऐसा लग रहा था ये कोविड की वजह से कि शायद अब थिएटर का क्या होगा। लेकिन देखिए रास्ता जो आपने खोज निकाला, ये ढूंढ निकाला है, ये तो बड़ा कमाल। इसमें तो हम और भी तरीके हो सकते हैं। हम अलग अलग रह के भी परफॉर्मेंस कर सकते हैं कि एक इस कमरे में, एक लंदन में है, एक अमेरिका में बैठा हुआ, एक यहाँ बैठा हुआ, वो भी करके हम मिलके एक सीन, इस तरह सब कुछ पॉसिबल, यहाँ तो कुछ भी कर सकते हैं। तो बस यही है जो मुझे थिएटर ने जो मुझे दीवाना बना रखा है, बस इसी वजह से कि हम अपनी जगह ढूंढ लेते हैं। मैं बचपन में बैलगाड़ी चलाता था, भैंस चराया करता था, और थिएटर ने मुझे जो ऐसा रास्ता दिखाया, देखिए मैं यहाँ तक पहुँच गया। ये बकौल थिएटर ही है जो मैं, क्योंकि थिएटर आपको इतने जल्दी रास्ता दिखाता है कि बस अब आपको जीने का मज़ा ही आ जाता है। अगर आप थिएटर से इन्वॉल्व हैं, इस तरह की परफॉर्मेंस और बहुत सारी चीज़ों से, म्यूज़िक से, डांस से, स्टेज से, तो एक तो जीने में जो कॉन्फिडेंस आता है वो एक बड़ी बाखूबी आप जीने का एक सलीका जो सीख जाते हैं, वो थिएटर ही है, यही थिएटर है। और आप लोगों ने इतनी जो बड़ी मशक्कत, कितने दिन लगे होंगे आप लोगों को ये रिहर्सल करने में? 2 हफ्ता। बस सिर्फ? यस। और 2 हफ्ते में हमने आधा 1.5 घंटे में सबको 2 हफ्ते को देख डाला। बहुत खूब, सचमुच। अब मैं क्या कहूँ, मुझे तो बस तारीफ के अलावा मुझे कुछ नहीं। मुझे ये नहीं है कि हम बहुत थिएटर हमें बस रास्ता दिखाए चले और हम थिएटर की राह पे चलते रहें और अपनी ज़िंदगी का मज़ा लेते रहें, बस यही मैं कहना चाहूँगा। वाह, शुक्रिया। Aman, is there anyone who wants to ask our guest any question or any of the participants? Reaction? Any Anand, Shayoni, Sonia, Simran, Sparsh, Lavin, Radha, Raghu sir has taken out his time to be a part of our efforts. Any questions you have? Please feel free Raghu sir से पूछने के लिए. मत पूछो भाई, आप लोगों ने इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस दी है कि मैं डरा हुआ हूँ। मत पूछिए कुछ।
कुछ मुश्किल सवाल मत पूछ लीजिए। सोनिया, नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ बताओ। तो बहुत बड़ा ऑनर है ये आपके सामने परफॉर्म करना, और मैं बैरी सर, अमन सर और शालिनी मैम को बहुत थैंक्स बोलती हूँ टू गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी। सो सर, जैसे आप जब परफॉर्म करते हैं स्टेज पे या इवन मूवीज में, तो आप एक सीन को कितना इम्प्रोवाइज करते हैं? कितना डिपेंड करता है। मुझे तो बड़ी डांट भी पड़ती थी। मैं कई जगह सीन को 10-10 मिनट बढ़ा देता था प्ले को। बैरी ने बहुत मुझे डांटा। बगदाद का गुलाम में एक लिफाफा चिपकाने वाला सीन था, वो कभी 5 मिनट का होता था, कभी 15 मिनट का भी हो जाता था। तो ये ऑडियंस पे डिपेंड करता है कि अगर ऑडियंस को मजा आ रहा है तो आप फिर तो मैं फैल जाता हूँ थोड़ा सा। और ये फैलने की आदत मुझे पारसी थिएटर से पड़ी है। आप लोगों को शायद पता नहीं, मालूम है कि नहीं, मैं पारसी थिएटर में था। मैं घर छोड़ के भाग गया था और मैंने एक पारसी थिएटर नाटक कंपनी ज्वाइन कर ली थी, जहाँ मुझे 2 रुपये 50 पैसे मिलते थे। और मैं वहाँ पे 6 साल बिल्कुल खाना बदोशों की तरह मैंने ज़िंदगी गुजारी है। और वहाँ पे ऐसे ऐसे उस्ताद लोग थे, ऐसे ऐसे खलीफे लोग थे, जिनकी ज़बान बड़ी खूबसूरत हुआ करती थी, जिनकी गायकी बड़ी खूबसूरत हुई थी, म्यूज़िक का इतना नॉलेज उन लोगों के बीच में। और ये जो पारसी थिएटर ख़त्म हुआ है, ये सिनेमा की वजह से ख़त्म हुआ। कि सिनेमा आ गया तो पारसी थिएटर धीरे धीरे उसका डाउनफॉल हुआ। और जब डाउनफॉल चल रहा था उस दौरान मैं वहाँ था। तो ये इम्प्रोवाइज़ करने की हमें आदत वहाँ से पड़ी हुई है। और इम्प्रोवाइज़ कैसे, हमें तो शाम को कभी कभी ये होता था कि कोई नाटक तैयार नहीं तो कहानी सुना देते थे कि ये लीजिए कहानी ये है और आप परफॉर्म कर दीजिए, और हम जाके स्टेज पे परफॉर्म कर देते थे। कभी कभी ये भी होता था कि कैरेक्टर कुछ और है, अगर ऑडियंस को मज़ा नहीं आ रहा था हम कैरेक्टर भी चेंज कर देते थे। तो ये, और फिर मैंने ऑडियंस भी जगह जगह की देखी। मैं बिहार की ऑडियंस से भी वाकिफ़ हूँ, मैं यूपी की ऑडियंस से भी वाकिफ़ हूँ, मैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, सब जगह की ऑडियंस। और ऑडियंस के अलावा वो जो उसके अलावा भी छोटे छोटे गांव कस्बों में 100 किलोमीटर छोड़िए 500 किलोमीटर, और हर उसमें 500 गज के बाद कोई अगर दूसरा एक गांव आ गया, वहाँ का कल्चर बिल्कुल फ़र्क है, वहाँ की ऑडियंस बिल्कुल फ़र्क हो जाती है। एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे कस्बे में चले जाइए, वहाँ की ऑडियंस फ़र्क हो जाती है। तो एक ही प्ले अगर आपने यहाँ किया, वहाँ उसका रिस्पॉन्स अलग है, और दूसरी जगह अगर कर रहे हैं, पता लगा कि जो रिस्पॉन्स यहाँ मिल रहा था हम वही उम्मीद लेके गए थे कि यहाँ भी बढ़िया हो, वहाँ पता लगे वो बिल्कुल ही कुछ वहाँ से कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा, फिर वहाँ अपने आप को चेंज करना पड़ता था। तो ये सारी चीज़ें पारसी थिएटर से ही मैंने सीखी। फिर अब ये हुआ कि ये उसके बाद मुझे एनएसडी में आ गया। तो क्या है कि ये नहीं कि आप फैल जाइए बिल्कुल, है ये फैलने की आदत कम मुझे तब मैं अब्राहिम अलकाजी थे उन दोनों डायरेक्टर, और एक प्ले हम कर रहे थे मिट्टी की गाड़ी, तो उसमें पंकज कपूर और राज बब्बर और ये सारे लोग हुआ करते थे। तो ये लोग 1 महीने से तकरीबन रिहर्सल कर रहे थे, और मुझे उन्होंने क्या किया, क्राउड सीन के लिए फर्स्ट ईयर को क्राउड सीन के लिए बुला लिया गया। तो क्राउड सीन में उन्होंने कहा कि भाई क्राउड सीन है और आपको ये करना है, आपको ये करना है, और मुझसे भी कहा आपको ये करना है। तो मुझे तो पारसी थिएटर की आदत पड़ी हुई थी, मैंने कहा मैं अभी करके दिखाऊं, तो बोले अच्छा करके दिखाओ। तो मैंने उसी वक्त उनको बोले, जब वो दवा बेचने वाले होते ना बाजार में, मेलों में, तो मैंने उसी वक्त करके दिखा दिया कि लो जी उठ बैठ मुश्किल कुशा है, जिसको काटे काला नाग कई पैर जिए, और लो भाई मेरे सज्जनों जिसको काटे जुल्फनागन मांगकर पानी ना पिए, अजगर करे ना चाकरी पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम, बच्चे भर बैठ जा मेहरबान कदरदान उगालदान थूकदान पीकदान, आपकी बस्ती में हर माह की 24 तारीख को आता हूँ, क्यों आता हूँ, किस लिए आता हूँ बताऊंगा। 1 तोला गद्दी पर रख के 2 गेस से इस तरह मारो, 2 गेस से इस तरह मारो, ठंडे पानी से कुल्ली करो, 32 नाश बाहर। तो ये सब इस तरह की जो आदत पड़ी हुई थी। तो क्या हुआ कि वो शाम को हॉस्टल आए, उन्होंने कहा कि ये जो पंकज जो रोल कर रहा है वो आप कर लीजिए। तो अब मैंने स्क्रिप्ट भी नहीं पढ़ा हुआ और मैं पहुंच गया वहाँ रिहर्सल में। तो अभी मैंने पंकज से कहा भाई आज कर लो, मुझे रिहर्सल देख तो लेने दो, मुझे ब्लॉकिंग तो देखने दो। उसने कहा नहीं वो अलका जी साहब बताएंगे, आप करो। तो
मैं गया तो फिर मैंने जल्दी जल्दी वो सीन पढ़ा। सीन पढ़ने के बाद मैंने दूसरे लोगों को भी डायलॉग बोल के अपना पूरा सीन खत्म करके मैं बाहर आ गया। उस दिन मुझे इतनी डांट पड़ी, मैं बता नहीं सकता। बिल्कुल ऐसे उन्होंने नीचे उतार दिया, बोले भाई तुम्हारे इर्द गिर्द और भी कैरेक्टर हैं और भी तुम्हारे को एक्टर हैं, जरा उनका भी तो ख्याल करो। आपने तो पूरा सीन अकेले करके निकल लिए, दूसरों का ख्याल। तो तब उन्होंने बताया कि कैरेक्टर का एक डिसिप्लिन होता है, एक दायरा होता है, उससे बाहर मत जाइए। तो फिर ये दायरे वाली बात मालूम हुई कि भैया कि कैरेक्टर का दायरा होता है। तो उस वक्त से फिर वो दायरे में काम करने की आदत आ गई। लेकिन ये है कि सबसे पहले फैलना भी सीखना चाहिए। मैं तो ये भी कहता हूँ कि आप फैलना आ जाए तो सिकुड़ना आ जाएगा। आपको फैलने नहीं आ रहा तो आप सिकुड़ेंगे क्या? तो इसके लिए फिर मैंने बैरी के साथ बगदाद का गुलाम किया। उसमें भी फैलने की वो जो आदत थी, कहीं कहीं तो वो सर्वेंट ऑफ टू मास्टर्स, तो उसमें भी थी आदत, लेकिन बैरी ने कंट्रोल कर रखा था, बहुत ज़्यादा फैलने नहीं दिया, तो वहाँ भी फिर कंट्रोल में था। तो इस तरह ये है कि मज़े लीजिए, बस यही है। और मज़े कंट्रोल में मज़े। तो शुरू में तो देखिए क्या है कि गलत हो गया, दूसरे दिन ठीक कर लेंगे। और इस फैलने में मुझे कई बार बहुत जगह, फैलना नहीं कहूँगा इसको, इम्प्रोवाइजेशन पर कई जगह डांट भी पड़ जाती है। क्योंकि क्या होता है कि आपको इम्प्रोवाइज करने की आदत है, तो दूसरे जो एक्टर, उसकी आफत आ जाती है। कुछ लोगों को तो अगर जरा सा एक लफ्ज इधर से उधर बोल दिया या कुछ भी कर दिया, एक एक्स्ट्रा कुछ कर दिया, तो उसका तो वो उसका सामने नहीं कर सकता। तो फिर ये भी ख्याल रखना पड़ता है। तो बस यही है कि जो है कंट्रोल में करिए तो सब कुछ अच्छा होता है, बाकी आपके हाथ में है जी। इतना लंबा जवाब चाहिए था सोनिया? इसलिए मैंने कहा था कि अब मिल गया। कि मुझसे तो वैसे There's no one simple answer to that question. What is improvisation or how much improvisation? Director to director to अलग जवाब मिल जाएगा ना? Anyway, sorry, कौन? स्पर्श। जी रघुवीर जी, आपने फिल्मों में एंट्री कैसे ली और आपका वहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा रहा है? पहली फिल्म हमने बैरी के साथ की थी, मैसी साहब। और बस यही है कि प्रदीप कृष्ण जो हमारे डायरेक्टर थे, उन्होंने हमारी परफॉर्मेंस देखी हुई थी और बस उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ा। एक्चुअली मैं फिल्मों में काम करना नहीं चाहता था। उसकी वजह ये थी कि मुझे थिएटर में इतना मज़ा आ रहा था कि फिल्मों से मैं अलग ही था, बरक्स था, दूर था, कि मैंने ये सोच लिया था कि जब तक कोई बेहतर कैरेक्टर नहीं मिलेगा तब तक नहीं करूँगा। तो फिर बैरी ने मुझे वो स्क्रिप्ट पढ़ाया और उन दिनों रेपर्टरी में था और बैरी भी थे साथ में, तो फिर पहली फिल्म वो कर ली मैंने। बस ये जवाब छोटा था। ओके, और कोई? दादा। Sir, it's such an honor to speak to you. आपके लिए सबसे डिफिकल्ट रोल कौन सा था और what preparations did you have to do for that? द फूल, बैरी जॉन के साथ एक प्ले किया था। डिफिकल्ट इसलिए था कि तब तक मैं बहुत कई तरह के कैरेक्टर में कर चुका था, लेकिन द फूल में जो 20 साल से लेकर 80 साल तक की उम्र का जो फासला था, बहुत सारे उसके जर्नी थी, उस जर्नी को 2-2.5 घंटे में उसको गुजारना था, वो पूरा पीरियड निकालना था वो टाइम। तो वो मेरे लिए बहुत मेहनत। और आखिर में जो असाइलम में चला जाता है, वो साथ धीरे धीरे उसकी जो दिमागी हालत जो होते जाती है, हर 10-15 मिनट का एक सीन होता है, चेंज होते जा रहा, तो उसमें मुझे एक तो बहुत मज़ा भी आया और बहुत डिफिकल्ट भी था और मैंने बहुत एंजॉय किया। उस प्ले से मुझे उसने मेरे एक्टर का नज़रिया ही बदल दिया कि एक्टर के को कैरेक्टराइजेशन पे काम करने का नज़रिया ही बदल दिया कि आप किस तरह से। मैं स्क्रिप्ट लेके, मैं उन दिनों जंगपुरा में रहता था, वो स्क्रिप्ट लेके वहाँ पार्क था, वहाँ घूमता रहता था और बार बार सीन पढ़ता था। सीन पढ़ने के बाद फिर खुद ही सुनता था वो सीन को क्या है, सुनने के बाद फिर मैं उसको इमेजिन करता था कि दिखाई क्या देता, वो कैरेक्टर दिखता कैसा, उसका साउंड क्या होगा।
तो वो करते वक्त मुझे बहुत ही मजा आया। मैं आज तक मैं अपने काम से बहुत जल्दी सेटिस्फाइड नहीं होता। मुझे हमेशा कुछ ना कुछ खामियां नजर आती रहती। आज तक इतनी फिल्में कर ली मैंने, थिएटर में तो खैर सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, मिला है, लेकिन फिल्मों में कभी नहीं मिला, क्योंकि यहाँ काम करने का वक्त नहीं होता आपको कैरेक्टर पे। तो वो प्ले मेरे लिए एक तरह से वरदान ही था, और मेरी जिंदगी का एक ऐसा अहम प्ले था जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। एक्टिंग के, एक्टर के कई रास्ते उसने मुझे दिखा दिए उस प्ले ने। Anand, Raghu, a performance. We had a guy playing a female character. That's Sparsh. We just saw him, and we had one girl playing a guy. Gender change. हाँ, आप ऐसा कभी किया आप? नहीं कभी नहीं किया। नहीं। शायद नहीं किया मैंने। हाँ। अच्छा। और कौन? कोई सवाल? और कोई सवाल है? Anand, you have a question? हाँ, I mean, firstly, बहुत, I mean, it's very, very overwhelming at this point of time, and thanks a lot, I think, for everyone, and especially मुझे रघुवीर सर से बात करने को मिल रहा है, वो itself is feeling so special. सर, अभी जो आपने एक बात बोली थी कि फिल्मों में आपको वो satisfaction वो नहीं है, तो सैनिटी रखने के लिए लाइक आप क्या करते हैं कि मतलब वो जो आपका पैशन वो, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली हमने देखा सिनेमा में बहुत ही कम लोग बचे हैं जो आप जैसे उस चीज को बरकरार रख के चलते हैं। क्या है कि एक आप अगर आपने कोई मंजिल बना रखी है, तो सबसे मुझे तो एक लगता है कि आप यहाँ पहुंचिए तो आपको अगर लगने लगे कि आपका खत्म हो गया है, तो समझ लीजिए कि आप वहीं खत्म भी हो जाते हैं, आपकी प्रोग्रेस वहीं रुक भी जाती है। तो ये भी एनएसडी से ही मिला मुझे कि आप सेटिस्फाइड होना और ना होना क्यों। वजह ये कि एक प्ले था मॉलियर का बिच्छू, वो हम कर रहे थे, तो मेरे एक ही जैसे 2 शो हो गए। तो अलकाजी साहब पीछे आए ग्रीन रूम में और कहने लगे आप बड़े जल्दी खुश हो जाते, जो कल किया वो आज किया तो खुश हो गए। बस वो दिन था कि आज तक मैं खुशी नहीं हुआ, पता नहीं क्यों। मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा तलाश जारी रहती है, मैं कभी सेटिस्फाइड नहीं होता। मुझे हमेशा मैं खोजता रहता हूँ, ढूंढता रहता हूँ, और इस खोजने में, इस ढूंढने में बड़ा आनंद भी आता है, मज़ा भी आता है। अगर आपको, जब तक आप डूबेंगे नहीं, गहराई में नहीं पहुंचेंगे, तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। आपको जहां जो आपको दिखाई दे रहा है, जो आप लिखा हुआ है, वो तो आप ज़्यादा 2 दिन, 4 दिन और 5 दिन में और 1 घंटे में पढ़ के आप कर देंगे। लेकिन उसके अंदर जो है, वो जितना ज़्यादा उसके बारे में आप सोचेंगे, उस पर ज़्यादा काम करेंगे, तभी आप वो डेप्थ नज़र आएगी आप उसकी, उस डेप्थ में जाने में जो मज़ा है। तो फिल्मों में डेप्थ में आप पहुँच ही नहीं पाते। थिएटर इतना एक्सपीरियंस है तो कहीं तक पहुंच जाते हैं। तो मुझे आज तक मैंने जितनी फिल्में की हैं, तो 40% और 50% से ज़्यादा मुझे लगता है कि मैं अपने कैरेक्टर में नहीं घुस पाया। अभी मुझे 100% की बड़ी उम्मीद है कि कब जाऊंगा पता नहीं, इस जन्म में तो मुश्किल लग रहा है मुझे। थैंक यू सर। Shavini, you raising your hand? Sir, thank you so much for making time for us. As everyone said, I'm really honored to be able to speak to you. So, मेरा question है, my character also speaks a lot about inspiration and what's up in the dialogues. So, my question to you is, who was your inspiration for getting into acting? Was there anybody, or you inspired yourself? Like, बच्चों से जो मैं सीखता हूँ, जो ईमान, जो सच्चाई उनके अंदर है, आप उनसे सीखना शुरू कर दीजिए। देखिए आपका नजरिया बदल जाएगा। वैसे तो बहुत सारे, कभी कभी तो मुझे दारा सिंह भी अच्छा लगता था। दारा सिंह की भी हम जब फिल्म देखा करते थे, लेकिन जब जिंदगी की समझ आई, इस फील्ड की समझ आई, थिएटर की समझ आई, एक्टर की जिंदगी की समझ आई, मैं तब मुझे लगा कि अगर आपको एक्टर बनना है, तो वो बच्चों वाली आपकी अंदर जहनियत होनी चाहिए।
मैं समझ की बात नहीं, मैं जहनियत की बात कर रहा हूँ। आपको उस तरह से सोचना पड़ेगा कि सब कुछ में जो ईमानदारी आप बरतेंगे, जो आप ईमानदारी से जो काम करेंगे, जो ईमानदारी से डूबेंगे, तभी कहीं जाके आपके पूरी जो सेंसेस है, जो बॉडी के सेंसेस, वो उस तरह से काम करना शुरू करेंगे। लेकिन उसके लिए डूबना बड़ा ज़रूरी है। तो ये बच्चों से सीखा है मैंने, और उन्हीं से सीखता रहता हूँ। इतने ईमान वाले होते हैं बच्चे कि उनको देखे ज़रा आप 10 मिनट बच्ची की जहनियत से जी के देख लीजिए, आप सिर्फ 10 मिनट, आपको मज़ा आ जाएगा। जी, ये तो जवाब छोटा था। That's it, Aman? That's it, sir. Any other question from anyone? No. So सारे जवाब तो दे दिए अभी तो। वो पहले वाले क्वेश्चन में मैंने सारे जवाब दे दिए थे। One question has come on the screen. अब चले गया। Did anyone read? सर आपसे सवाल पूछा गया है, एक आध क्वेश्चन जो ऑडियंस से अगर लें तो सर एक आर्टिस्ट ऑडियंस को कैसे अपने से जोड़े रखे? ईमान से। आप ईमानदारी से अपना काम करिए, ऑडियंस अपने आप जुड़ी रहेगी। ऑडियंस कहीं नहीं भागती, और अगर आप ऑडियंस के लिए परफॉर्म करने लग जाएंगे तो फिर ऑडियंस भाग जाएगी, आप अकेले परफॉर्म करते रहेंगे। ऑडियंस को जोड़ने के लिए ऑडियंस में ध्यान, तवज्जो मत दो, आप अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान दो बस। ऑडियंस अपने आप आपको कि यार ये हमारे, हमेशा देखा होगा कि आप किसी पे तवज्जो न दे, अपने आप में रहिए, अपने जुनून में रहिए, तो लोग आपको देखते रहेंगे, और जैसे आप लोगों को देखने लगते तो लोग भाग जाते हैं, फिर आप अकेले रह जाते हैं। तो जो भी करे डूब के करिए, जो आप कर रहे हैं उस ईमान वहां बरकरार रखिए, उस जगह पे कि जो आप कर रहे हैं वहां डूबे रहिए, तो फिर आपको फिर कोई नहीं भागता, कोई नहीं उठ के जाता। Thank you, sir. Raman Kaur, how do we take over कुछ? आपसे सवाल पूछा गया है सर कि हम स्क्रिप्ट को अपने वर्ड्स में कैसे करें। शुरू में बहुत मुश्किल होता है वर्ड बाय वर्ड याद रखना, कुछ आपकी तरफ से अगर इसके भैया, अब वो जिसने स्क्रिप्ट लिखा है उससे पूछ लीजिए कि हम कैसे उसको तब्दील करें, क्यों उन्होंने खुद लिख के दे दिया, और आप अपनी तरीके से अगर करने लग जाएं, अगर कहीं जबान में फंस रहा है या कुछ हो रहा है तो वहाँ आप सलाह मशवरा करके कर सकते हैं, और अपनी बोलचाल की भाषा में। लेकिन आपके कैरेक्टर में वो भाषा नहीं है, वो बोलचाल नहीं है, वो अल्फाज नहीं है, वो शब्द नहीं है, तो आप चेंज कैसे कर दिए, तो गुनाह हो जाएगा स्क्रिप्ट के साथ। Tell him, Aman, he should join our workshop. It's not about the words, it's about so many other things. Psychology, body language, activity, वगैरह. Yes, please feel free to join our workshops for further training. It's there on Instagram. You can check out all the dates, availability, and contact us. All these stories, जो आज सारी स्टोरीज परफॉर्म हुई हैं, रघु सर ने पूछा था कि कितना टाइम लगा रिहर्स करने में, तो सर 2 हफ्ते की तो अभी की रिहर्सल थी, लेकिन उससे पहले ये कहानियाँ वर्कशॉप्स में डेवलप हुई थी, जो सबने इंडिपेंडेंटली अपने आप डेवलप करी थी। फिर हमने उसके ऊपर रिहर्स किया इंडिविजुअली, और उसको अभी परफॉर्मेंस लेवल तक लेके आए। लेकिन तो ये है सर। बहुत खूब। और ये 15 दिन तो कुछ भी नहीं होते, और अकेले परफॉर्म करना, मुझे अकेले परफॉर्म करने में बड़ा डर लगता है। क्या बात है सर, क्यों? और क्या, नहीं डरना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि सारी अटेंशन आपके ऊपर होती है। हाँ, और अकेले आप कमरे में बैठ के अकेले परफॉर्म करते रहिए ना, रिहर्सल करते रहिए, तो और ऐसे माहौल में एक्चुअली कि हमेशा आप कमरे के अंदर ही बंद हैं, आप बाहर निकल नहीं सकते, और अंदर बैठे हुए आप रिहर्स कर रहे हैं, और चाहत बाहर की है कि यार बाहर एक चाय तो पी के आ जाएं कम से कम, घर में सब्जी नहीं है तो सब्जी तो लेके आ जाएं कम से कम, वो भी नहीं कर पा रहे, और बस यही तो वो सारा कुछ जहन में जो चलता रहता है। और ऐसे मौके पे कि बहुत सारी चीज़ें बाहर की भी हैं, और मैंने सुना आप लोगों ने कुछ 2-2, 2:30, 3-3 बजे रात तक
रिहर्सल की। लेकिन एक्चुअली क्या है, ये बड़ी अच्छी बात है। ये इसको मैं ये कहूँगा कि यही ग्रेटनेस है थिएटर की, यही महानता है थिएटर की, यही मज़ा है थिएटर का कि हम लोगों को अगर वक्त दिखाई देने लग जाए तो फिर हम थिएटर नहीं कर सकते। थिएटर में हमें वक्त नजर ही नहीं आता। मैं जब एनएसडी में था, हम 24 घंटे में 2 घंटे सोने मिलता, तो 22 घंटे में तो काम में लगा रहता था। और मैंने एक्टिंग में नहीं वहाँ किया स्पेशलाइजेशन, मैंने किया है स्टेज क्राफ्ट में। तो मुझे क्राफ्ट में बड़ा मजा आता है। मैं घर में भी मेरे वर्कशॉप है, मैं कहीं फूड बनाता रहता हूँ, कहीं कुछ करता रहता हूँ, बहुत सारी चीजें ऐसे सब कुछ करता, पीवीसी पाइप से फूड बना लिए। तो ये सारे, और ये थिएटर की देन है। बस थिएटर हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना ही सिखाता है। तो ये हम सब लोग बड़े जो यहाँ हैं सब बड़े खुशकिस्मत हैं कि हम थिएटर से जुड़े हुए हैं। थिएटर जिंदगी को इतना आसान कर देता है कि मैं बता नहीं सकता, बहुत आसान कर देता है। बड़ी बड़ी मुसीबतों, बड़ी बड़ी आफतों से, ये कम आफत है, ये जो कोविड वाली आफत है, कम है क्या? और देखिए हमने अभी हम हंस रहे हैं, खुश तो हो रहे हैं, कम से कम इस वक्त बैठे हुए हैं सामने। अभी किसी को भी ख्याल नहीं होगा कि बाहर क्या चल रहा है। By the way, रघु सर अभी कोविड से रिकवर कर रहे हैं, सो ही इज इन रिकवरी राइट नाउ, सो ही इज स्टिल एबल टू जॉइन अस। हाँ, तो मैंने तो कोविड के भी मजे ले लिए। मैं तो अभी 13वां दिन उसका भी मजा ले लिया। 3-4 दिन सांस लेने में दिक्कत नहीं हुई, दिक्कत हो रही थी। और फिर मैंने योग शुरू किया, क्योंकि थिएटर ने योग भी सिखा दिया है, तो वो भी करता रहता हूँ प्राणायाम वगैरह करके। और मैंने हटा दिया कि भैया तू परे रह, यहीं बैठे मुझे देखता रहे कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो किनारे बैठा रहता था और मैं बस उसके बगल में बैठे अपना काम करता रहता, फ्लूट हो जाता रहता था। सर एक सवाल आया है कि क्या कभी आपका कोई कैरेक्टर आपके सबकॉन्शियस माइंड में घुस गया है क्या? मतलब इतना प्रिपेयर किया है कि एकदम अरे भाई साहब, थोड़े थोड़े मैं ही नहीं घुसा, बाकी सारे कैरेक्टर मेरे अंदर घुसे हुए। सिर्फ मैं ही अपने माइंड में नहीं घुसा हूँ, बाकी मैं तो बाहर ही रहता हूँ। दूसरे कैरेक्टर बहुत जो अच्छी बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। अब कैरेक्टर ये थोड़ी जो किए हैं वो कैरेक्टर, बहुत सारे जो म्यूजिशियन है वो मेरे जहन में घुसे हुए हैं। मैंने कैरेक्टर नहीं किया हुआ म्यूजिशियन का, लेकिन घुसे हुए हैं। तो उनको मैं उनकी पद चिन्हों पे चलता रहता हूँ कि उन्होंने कैसे अभ्यास किया होगा, कैसे क्या किया होगा। तो वो जरूरी थोड़ी जो आप कैरेक्टर करो वही आपके जहन में रहे, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो कैरेक्टर आपका अच्छा लगे, जिससे कैरेक्टर से आपकी जिंदगी को कुछ मिल रहा हो, उसको जज्ब कर लीजिए और उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। देखो आपको एक नई राह मिल जाएगी जीने की। शुक्रिया सर। सर एक लास्ट सवाल आई थिंक लेंगे। आपसे पूछा जा रहा है सर कि कई बार एक्टर एक पैटर्न में फंस जाते हैं, तो उस पैटर्न को कैसे तोड़ा जाए? वो लेजी होते इसलिए फंस जाते हैं भैया। कोई किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं है कि आपको एक पैटर्न में बंधक रख ले, अगर आपकी जब तक मर्जी ना हो। मैं भी जब आया था तो मुझे तो कॉमेडियन बनाना चाहते, तो मैं अड़ा रहा, मुझे नहीं बनना कॉमेडियन, मुझे जो अच्छा लगता वही करूंगा मैं। और उसके पीछे वजह भी ये थी कि आप वही करिए जो आपको अच्छा लगे। सबसे पहली बात ये है, ये शर्त अगर आपकी है तो जब आप करेंगे तो वही ऑडियंस को अच्छा लगेगा। ये नहीं कि आप जो वो कह रहे हैं आप करते चले जाइए और अपने आप को उनके इशारों पे नचाइए, तो फिर आप तो आगे बढ़ ही नहीं सकते। आप तो वो जो पहले किया बस वही करते चले जाएंगे। अपने आप को तोड़िए, और इसके लिए अपने अंदर तो अपने ऊपर नजर तो डालनी पड़ेगी आपको, अपने बारे में सोचना पड़ेगा। हमेशा जागते रहिए, हमेशा, कि आप हैं कहाँ, किस जगह पे हैं। शुक्रिया सर। Barry sir, anything else or do we wind up? Yes, no, only to thank everyone very much for their time, for their comments. We hope it's been useful and enjoyable, and look forward to seeing you again tomorrow evening with a different set of plays. Oh, great. Yes, tomorrow evening again, 6 p.m. we are starting, and that's the same time. रघु सर आप कुछ कह रहे थे, सॉरी। नहीं, मैं वो सेम टाइम यही कहना चाहूँ जो आपने कह दिया बस। ठीक है सर।
Special thanks, Raghu sir. Thank you so much. जी बहुत बहुत Thank you, शुक्रिया। Raghu ji. Thank you, thank you, thank बस you. बहुत मजा आया मुझे सब लोगों के, बस ये जो मजा अच्छी आया, बात है, बस अच्छी यही बात है। जिंदगी है। हाँ जी, यही जिंदगी है, ऐसे ही एंजॉय करो, ऐसे ही मजे करें, बस यही है। Thanks to everyone who joined us on Zoom and gave and participated in watching all the performances. And thank you all the participants. And thank you, Barry sir. See you all tomorrow. I will be ending the meeting now in 3, 2, 1.